I have murdered. We have the three accused are there. Me and I am the husband, my father and my sister. All three have planned the murder of my wife and just killed her by biting her on by the snake, your lordship. Now my Snake biting. snake biting, your lordship. Yes. May I narrate the facts, your lordship, first. That this is the second bail application of the present applicant. The first bail application was dismissed and withdrawn. Wide order dated 10 January 2023 with direction to expedite the trial, your lordship. The applicant is in jail since 4/12/2019. That is approximate more than 3 years and 9 months has been completed in the jail. In that 35 witnesses, only 9 witnesses has been examined. The case status report has been called from the learned trial court, which stated that we have sought the time for the witnesses for the cross examination of the witnesses who are coming to the court. I have the all certified copy from the trial court of the proceedings. It has clarified that we have never sought any time for any witness, your lordship. The witness all the witness examinations has been filed by me by the 2 IAs, your lordship. Now, your lordship, after arguing on the last date, 2 points has been resolved that there is a call detail with of me, my sister and my father. And voice sample report is against me, which has been come on the last month, whereas that report is dated 11/11/2020, which is a part of the challan. Yes. And after that, considering that report too, the co-accused has already granted the bail, your lordship, in which it has been pointed out by the learned by this honorable court, sorry sir, that the mobiles has been seized on 5/12/2019, whereas the voice samples has been taken on 4/12/2019. That before receiving that mobiles, the very voice samples has been mobile of Amit, the present applicant, and the cousin, my sister, who has been alleged that. Where is the order passed in the case of co-accused? Sir, this is the order of the both, sir. क्या भाई इनकी वॉइस ट्रांसक्रिप्ट है क्या? है ना, मैंने ये इसमें ओपिनियन दिया जब इसकी रिपोर्ट, क्योंकि उन लोगों के वॉइस ट्रांसक्रिप्ट में कुछ था नहीं, हाँ, दूसरों के, इसलिए दिया है। इनके में बताइए। इसमें तो आया मेरे ओपिनियन में कि द ऑडिटरी एग्जामिनेशन ऑफ क्वेश्चन वॉइस मार्क specimen voice mark reveal that question voice mark so and so is similar to the specimen voice mark. सिमिलर आया उसमें ओपिनियन में। तो ये इन्होंने किसको कॉल किया था? जो सर, ये दोनों जिनको बेल ग्रांट हुई, इन दोनों को ही कॉल किया था सर। जो सिस्टर से इनकी कन्वर्सेशन हुआ था, उसका ये सैंपल लेकर, और फिर जो डिसीज थी इन दोनों की वॉइस सैंपल से ये जब रिपोर्ट आई तो उसमें तो सेम आया कि ये जो स्पेसिमेन है ये उसी सेम पर्सन का है। क्या पोस्टमार्टम में कोई स्नैक बाइट का आया है क्या? पायलट ये रिपोर्ट बाद में सबमिट की गई है इसमें। सर, मैं सबमिट समथिंग सर। सर, जो रिपोर्ट आप बता रहे हैं उसका जो फाइनल कंक्लूजन है वो ये वर्ड्स करता है, हैंस द क्वेश्चन वॉइस मार्क्ड Q-A इज द प्रोबेबल वॉइस of the person whose specimen voice is marked as S1A, and the question voice marked Q1B is the probable voice of the person whose specimen voice marked S2B. That the final conclusion of the report is that the voices are only probable, your lordship. That is not verified that these are the voices which has been done out, your lordship. टेस्ट जो भी होते हैं उसके सामने 100% कंक्लूसिव कोई भी नहीं। 100% इवन DNA टेस्ट इज नॉट 100% conclusive. Lies that. Sir, but that is a reason. तो ये establish करते हैं। हेड राइटिंग में भी 100% वो कंक्लूसिव नहीं होता, वॉइस में भी ये सारे एविडेंस कभी भी कंक्लूसिव मैटर ऑफ एविडेंस। तो प्रोबेबल तो लिखेंगे ही वो। एक्सपर्ट इज राइट। सर, मैं दूसरों को बेल इसलिए हुई कि वो 120B के 120B में आपके ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन है सर। बट इसमें भी कुछ थिंग्स है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज कोई डायरेक्ट वो एविडेंस है नहीं सर। इसमें 9 विटनेसेस अभी तक एग्जामिन हुए हैं 35 में से।
एक सिंगल विटनेस ने या सिंगल डॉक्यूमेंट ऐसा इसमें एक भी प्रेजेंट आउट नहीं हुआ है जो ये रीज़न आउट करता हो कि आई हैव एनी इंटेंशन टू किल्ड एंड आई हैव एनी रीज़न टू किल्ड हर. That is completely absent of mens rea. According to sir, केस क्या डेथ पॉइजन से हुई? स्नैक बाइटिंग स्नैक बाइट. Due- और ये स्नैक लेके आया ड्यू सर? टू स्मूथरिंग माय लॉर्ड. ये लेकर आए प्लानिंग से उसको और फिर उसको उससे कटवाया ऐसा है. सत्यनारायण साक्षी के मतलब सत्यनारायण साक्षी उन्होंने कहा भी है सर ये क्या पढ़ रहे हैं आप, क्या पढ़ रहे हैं? मैंने सत्यनारायण उसमें डीडी भी रिकॉर्ड किया है डिसीज का और उसका एक हैंड रिटन एक लेटर भी था और डीडी भी रिकॉर्ड हुआ. उसने मरने से पहले स्टेटमेंट में कहा सब चीज़ें कोरोबोरेट कर रही है उसकी कंप्लेंट. नहीं, एक एक चीज का डीडी रिकॉर्ड हुआ है. शिवानी का डी कहाँ है? शिवानी है ना, हाँ उसका 161 रिकॉर्ड हुआ. हाँ, क्या बोला उसने? ने अपने कथन में बताया कि मेरे माता पिता ने सामाजिक रीति रिवाज से मेरी शादी सो एंड सो अमितेश के साथ की थी. अमितेश से मुझे 2 लड़की वेदिका 8 साल 5 साल है. शादी के हम दोनों पति पत्नी साथ संचार नगर इंदौर में वर्ष 2016 तक रहे थे. मेरे पति अमितेश की नौकरी एक्सिस बैंक में थी. रिलेवेंट है मेरे पति ने वहाँ गुड़गांव में किसी अन्य महिला के साथ रहने लगे. मेरे पति यहाँ संचार नगर घर आते थे तब मेरे साथ मारपीट करते थे. मुझे शारीरिक मानसिक रूप से परेशान करने लगे थे. अभी दीपावली पर भी घर आए थे तब भी मेरे साथ मारपीट की थी. उसके बाद वे घर नहीं आए. मैंने अपने पति को उनके मोबाइल नंबर पर फ़ोन लगाकर बात की तो गाली गलौज करते हैं और बोलते हैं कि तुमको मैं अपने साथ नहीं रखूँगा और तुमको अपने माँ बाप के पास जाना पड़ेगा. मैंने एक श्वेता नाम की महिला से शादी कर ली है, मैं उसी के साथ रहूँगा. मेरे ससुर ओम प्रकाश जी हमारे साथ अभी दिनांक 16/1/19 तक रहे. उसके बाद मेरे ससुर ने भी दूसरी महिला किरण के साथ शादी कर ली तो उसके साथ लेकर दिनांक 16/19 को मेरी बुआ सास सो एंड सो. तो एलिगेशन तो स्पेसिफिक है और रीज़न भी है कि सेकंड मैरिज इन्होंने कर ली इसलिए उन्होंने उसको ये लॉर्डशिप स्पेसिफिक सर उसका खुद का है. और नहीं, ये इंसिडेंट के बारे में कुछ कहा क्या उसने? माइनॉरिटी एक लेटर उन्होंने फाइल किया है उसके बाद कुछ महीने पूर्व. उसके अंदर लिखा है उन्होंने कि मुझसे पैसे की मांग की गई और जान से मारने की धमकी भी दी है उसके अंदर. ऐसे के अंदर माइनॉरिटी इसमें माइनॉरिटी यदि यह लोग यहाँ पर अमितेश पापा जी एवं दोनों दीदी एवं जीजाजी मुझे मानसिक रूप से करीब 3-4 वर्ष से टारगेट कर रहे हैं. बराबर यह कहते हैं कि मुझे नई गाड़ी लेना है. पापा चाचा से 7 लाख रुपए मांग लो तथा कई बार अमितेश गालियाँ देते हैं और कहते हैं कि मार डालेंगे नहीं तो यहाँ से चली जाओ. यह भी कहते रहते हैं कि सभी लोग तलाक पेपर पर साइन कर दो. मैंने दिल्ली में मुकदमा कर दिया है और पापा जी भी यहाँ से वहाँ बिना बताए चले जाते हैं. मेरे पास कोई जेवर भी नहीं है और पूरा जेवर बेवकूफ़ बनाकर लेकर लॉकर में रख दिया है. और आप लोगों ने दिल्ली में उस लड़की के साथ पकड़ा या उसके आज फ़ोन में गालियाँ और उससे फ़ोन से गालियाँ दिलवाते हैं और वह कहती है कि मिलेगी तो गालियों में लिख नहीं सकती गालियाँ. सभी लोग मेरी हत्या कर सकते हैं. आप मुझे 50,000 भेज देना. मैं बहुत परेशान हूँ. ये माय लॉर्ड खुद डिसीज ने अपने हाथ से लेटर लिख के गई है हमारे फादर को. और माय लॉर्ड इसके पीछे एक अमितेश पटेरिया जो एप्लीकेंट है उनके बयान भी हैं जो उन्होंने खुद में लिखे हैं पुलिस को दिए हैं कि मैं अमितेश पटेरिया ने श्वेता कुमारी के साथ दिनांक 8 फरवरी 2018 से मैं श्वेता कुमारी के साथ रहा हूँ. मेरी पत्नी व 2 बच्चे इंदौर में रहते हैं. इसका उम्र ये है. ठीक है, एलिगेशंस तो हैं हरासमेंट और इसके है ना, फिजिकल टॉर्चर और इसके. जी पर ये मर्डर से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं कि स्नैक बाइट जो पोस्टमार्टम में क्या है? अगर स्नैक बाइट होगा तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं ये होगा, बाइट के निशान होंगे. पीएम रिपोर्ट सर कैन आई से समथिंग सर? लेट मी नहीं वो जो आपने स्टेटमेंट पढ़ा है शिवानी का उसके रिलेटेड बोलना चाह रहा हूँ अभी रुक जाएं सर. इसमें मिस्टर शर्मा. 10 इंजरीज है एज पर पीएम रिपोर्ट माय लॉर्ड. देयर इज 10 इंजरीज. इंजरीज भी? हाँ मारते भी वो 10 इंजरीज है. उसमें है 2 पंक्चर वाउंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ लेफ्ट फोरआर्म सिचुएटेड. सेकेंड है रेडिश कंट्यूजन एब्रेशन. थर्ड है रेडिश कंट्यूज्ड एब्रेशन. फोर्थ है रेडिश कंट्यूशन. फिफ्थ है रेडिश कंट्यूशन. ऐसे 10 इंजरीज है. और जो स्नैक से रिलेटेड है उसमें एक रिपोर्ट है. स्नैक बाइटिंग की भी एक रिपोर्ट है.
इसमें माइलोड साफ माइलोड घर में ये मतलब स्नैक का एक एग्जामिनेशन हुआ, उसकी भी रिपोर्ट लगी है। किसका? स्नैक का, वो जिस स्नैक को रिकवर किया, फिर इन्होंने जो लेकर आए जंगल से, फिर उसको जो कराया था स्नैक बाइटिंग, तो उसमें यह है कि द स्नैक बिलोंग्स टू कोबरा एंड इज venomous snake species. Second, one fringe is present or venom gland is present. Venom is present in the venom gland. This snake species can kill or paralyze. ऐसा ये इसकी रिपोर्ट है उस स्नैक की। है ना। बट सर ये स्नेक की रिपोर्ट है सर कि स्नेक इज पॉइजनस और नॉट। माइलोड कोई भी सांप एकदम से अटैकिंग स्वभाव का जब होता है, जब उस माइलोड उसके बयान में भी आया है कि 2-3 दिन उसको बंद करके रखा, तब उसने जाके उसको काटा है माइलोड सोते हुए व्यक्ति को। मतलब ये मैटर ऑफ एविडेंस है कि मेडिकल ऑफिसर अगर ये एग्जामिन करेंगे तो वो क्लियर कर पाएगा कि इसी स्नैक बाइट से ही है, स्मूथ रिंग हुआ, उसकी ड्यू डेथ हुई बात। उसी बिस्तर पर मिला मंडल। और मैंने उनकी वॉइस रिकॉर्ड में बातचीत की है, उसमें भी उन्होंने बोला है कि एक्सीडेंट हो गया था तो पुलिस से भी उन्होंने सेटिंग करी है, सब उसकी माइलोड सारी चीज़ें नहीं। Lordship, now can I say something, sir? Yes. सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने शिवानी का स्टेटमेंट रीड आउट करा है, दैट इज 161 नॉट डाइंग डिक्लेरेशन। एंड सेकेंडरी थिंग, एज पर द एफआईआर एंड एलिगेशन, After the death, it will be treated. नो सर, सर वो जब तक वहाँ पर पहुँची है हॉस्पिटल, वहाँ उसको डायरेक्ट डिसीज डिक्लेयर करा है सर। देर इज नो चांस फॉर 161 स्टेटमेंट्स। मैटर अभी तो प्रोसिक्यूशन के पास में 161 का आफ्टर हर डेथ इट विल बी ट्रीटेड टू बी अ डाइंग डिक्लेरेशन। सर यही तो डाउटफुल है जो एफआईआर पॉइंट आउट है, एफआईआर पॉइंट के अकॉर्डिंग कि उसको बुलाया गया, और जो PW1 ने भी स्टेट करा है कि उसको बुलाया गया, उन्होंने उसको जो है शिवानी भाभी को बोले उसमें लेकर गए, कार में लेकर गए, वहाँ पे डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने उनको डिसीज डिक्लेयर कर दिया। मीनवाइल कोई वर्ष नहीं है कि पुलिस वहाँ पर आई, कोई स्टेटमेंट हुआ। सर 161 स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना पॉसिबिलिटीज ही नहीं है ये लॉर्डशिप, द फर्स्ट थिंग। तो आप जब आईओ एग्जामिन होगा तो क्रॉस करिएगा। सो 161 ऐसा कोई चालान में इसमें एंक्लोज भी नहीं। ये जो आप जो बता रहे हैं ये अनदर कोई कंप्लेंट है, क्योंकि आविदिक का इसमें है ही नहीं, उसमें स्पेसिफाइड मेंशन है। नियम के हिसाब से उसको फिजिकल इस चालान का पार्ट है, इस पर केस डायरी पढ़ रहा हूँ अलग से, इसमें अटैच है केस डायरी। सर आवेदिक का कंप्लेंट तो है ही नहीं उसमें, जो शिवानी है कंप्लेंट जो की है आपके फादर ने की है। और कौन करेगा डेथ के बाद तो फादर ही। सर दैट्स सर आवेदिक का हो ही नहीं सकती सर, यही तो मेरा सबमिशन है। सेकेंडरी सर, फ्रॉम PW1 टू PW9 इनके ब्रदर के भी एग्जामिनेशंस हुए हैं, इनके अदर रिलेटिव्स के भी एग्जामिनेशन हुए हैं, किसी ने भी ये वर्ष नहीं करा है जो आप बता रहे हैं कि उस हरासमेंट्स के बारे में, मर्डर के बारे में, या कोई रीज़न के बारे में। उसका लेटर है ना, अभी एग्जामिन होंगे। MLC भी तो कोरोबरेट कर रही है कि डेथ वाज ड्यू टू ऑस्पेशिया एज अ रिजल्ट ऑफ स्मूथ रिंग, वो कर रही है उसको वो तो है पॉइजन से ही। वो मेडिकल ऑफिसर के स्टेटमेंट से क्लियर हो पाएगा कि इसी सांप स्नैक बाइट से ये डेथ। सर आपने जो है स्टोरी जो है 2 पॉइंट्स करे हैं मर्डर के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्नैक बाइट, एंड सेकेंडरी कि आपने बाद में ये क्रिएट करा है कि हमने उसका तकिए से मुंह दबा के मारा है। 2 एलिगेशंस इसमें हमारे ऊपर पॉइंट आउट किए गए हैं। तो स्नैक बाइट के लिए स्नैक जो है PW4 और PW7 को जो है बताया गया है कि जिन्होंने स्नैक को लाए थे और हमें कटवाने के लिए, तो वो कम्प्लीटली टर्न होस्टाइल हो चुके हैं। स्नैक का कोई विटनेस नहीं। सेकेंडरी जो स्नैक पाया गया है इस पर भी मेडिकल ऑफिसर है सर, उनके स्टेटमेंट हो चुके हैं। उनका अकॉर्डिंग है कि उन्होंने 3.5 फीट का सांप देखा है, और एक ने बताया है 4 फीट का सांप। सेकेंडरी जो सीजर विटनेस है उसने ये स्टेट आउट ही नहीं करा है कि मुझसे कोई सांप जब्त हुआ था। सेकेंडरी पिलो कवर जो है, जो आपने सेकेंड एलिगेशन बनाया है कि पिलो से मुझे मुंह दबा के मारा गया था, तो मुझसे पिलो भी जब्त नहीं किया गया है। एंड मेरा जो 27 का मेमो बनाया गया है जिससे आपने पिलो बताया गया है, वो भी सर पूरा डाउटफुल है। मैं सर इसके मैंने IF कंसिडर कर सर 10641 ये स्टेटमेंट से सर PW5। किसका बचा, किसका स्टेटमेंट? सर ये सीजर विटनेस है लॉर्डशिप। तेरा क्यों आईओ डॉक्टर हो गए कि नहीं अभी? सर अभी IO नहीं हुए हैं,
एक जो है मेडिकल ऑफिसर जिन्होंने सांप को जब्त किया था, उनके इसमें स्टेटमेंट हुए हैं। ये सीजर है, अमितेश से पिलो सीजर है। सर पिलो सीजर है, लेकिन विटनेस ने उसको नहीं वेरीफाइड करा है। सिर्फ आपने सीजर मेमो बना देने से सर थोड़ी सीजर हो जाएगा। लोहे का चिमटा है, एक पिलो है। सर चिमटे पे भी आया है, मैं वो एक सेकंड में सर रीड कर दूँ तो क्लेरिफाइड हो जाएगा। ट्रायल नहीं है मिस्टर शर्मा, पूरा ट्रायल कौन है कि आई हैव टू अप्रिशिएट ऑल एविडेंस। सर मेरा पॉइंट है कि आपने जो एलिगेशंस बनाए हैं वो कम्प्लीटली फॉल्स पॉइंट्स पे बनाए गए हैं। ये डॉक्टर मयूरी थनावर है, PW5, इनका जो है पेज नंबर 35 सर मेरा उसका। ये ऑब्जर्व करते हैं भाई, आप कोऑपरेट करिए आप लोग ट्रायल में। सर ट्रायल में ये सर कर रहे हैं वहाँ पे। सर ये मेरे पास पूरी ऑर्डर शीट्स है कम्प्लीटली। मैंने अब कभी भी हमने किसी भी एक्यूज की तरफ से टाइम सीक नहीं किया गया है। नेसेसरी कोर्ट ने रिपोर्ट दिया है कि सर पेरा नंबर 7 बहुत है। लंबे लंबे क्रॉस एग्जामिनेशन किए जा रहे हैं, टाइम लग रहा है। सर ये मेरिट पे तो नहीं है मिस्टर शर्मा, PM रिपोर्ट। सर PM रिपोर्ट भी सस्पिशियस है सर। आपने जो तकिए से बता रहे हैं आप मारना कि बिकॉज ऑफ उसको तकिए से दबाया गया है, मुंह से उसका जो है चोक हुई थी और उस अकॉर्डिंग से उसकी डेथ कॉज हुई है। पर पिलो मेरे से सीजर ही नहीं हुए हैं। पिलो का स्पेसिफाइड मेंशन आया है। सीजर हुआ है, सीजर विटनेस हॉस्टाइल हो गया। नहीं उसने सर हॉस्टाइल नहीं हुआ है, उसने ये स्पेसिफाइड करा है कि मैंने ऐसा नहीं बताया है। सीजर विटनेस का खुद का सर एक बहुत बड़ा वो है स्टेटमेंट है। सीजर विटनेस हॉस्टाइल नहीं हुआ है सर। ठीक, PW7 है लॉर्डशिप। PW7 का पैरा नंबर 5 है, पेज नंबर 39 पर। उसकी लास्ट 3rd लाइन से है, मेरिट सर। ये कहना सही है कि मैं पिलो और पिलो कवर में फ़र्क समझता हूँ। ये कहना सही है कि प्रदर्श P 29 में की जब्ती में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं कि मेरे सामने पिलो जब्त किया गया था। यह कहना सही है कि जब्ती पंचनामे में ऐसा नहीं लिखा है कि पिलो जिससे मुंह दबाया था बरामदा मुख्य गेट से शुरू हो गया है। सांप मुख्य दरवाजे के लगभग 6 फुट दूर पड़ा हुआ था। मैंने सांप को देखा था। ऐसा नहीं हुआ कि मेरे सामने 3 फीट का सांप जब्त किया गया था। सो ही इज़ कम्प्लीटली डिनाइल दैट उसके सामने सांप की भी उसने स्टोरी डिनाई कर दी है एंड जो पिलो है उसकी भी स्टोरी डिनाई की गई है लॉर्डशिप। एंड जो मेमोरेंडम ऑफ 27 का विटनेस है ये भी इनके रिलेटिव्स में ही है सर। PW2 इनका सर पेरा नंबर 26 सर, पेज नंबर 28 है। फ्रॉम लास्ट पेरा नंबर 26 लास्ट 5th लाइन से लॉर्डशिप। ये कहना सही है कि प्रदर्श P 11 का मेमो देते समय अमितेश ने ऐसी जानकारी नहीं दी थी कि तकिए का कवर लाइट ब्लू था, पीले रंग का था, जिस पर जामुनी और मटमैले रंग के एप्पल नुमा प्रिंट थी, तथा जिसके अंदर एक पिलो गुलाबी रंग का जिस पर पीले रंग की एम्ब्रॉयडरी हुई थी, जिसे अमितेश जब्त कराए। कंटिन्यू सर पैरा नंबर 27 पर नेक्स्ट पेज। ये कहना सही है कि प्रदर्श P 11 के मेमोरेंडम में इस बात का उल्लेख नहीं है कि चिमटा लोहे का था जो सिल्वर कलर का था और उस पर डिज़ाइन बनी होकर कड़ी लगी हुई थी। ये कहना सही है कि प्रदर्श P 14 कॉज ऑफ डेथ क्या आया है? कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू ऑस्पिशिया एज अ रिजल्ट ऑफ स्मूथरिंग, तकिए से दबाने से स्मूथरिंग आया। स्नैक बाइट से नहीं है? नहीं, स्नैक बाइटिंग का एज पर PM रिपोर्ट नहीं है उसमें। एंड स्नैक बाइट जो सर तकिए की रिपोर्ट है ये भी एक डाउटफुल है। PW1 जो है और PW8 इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं, इन दोनों ने और MLC में जो 10 इंजरीज है वो भी उसी इंसिडेंट्स की बताई उन्होंने, जो रेडिश और जो बताया वो उसी कारण से। चलिए लिखिए। श्री आकाश शर्मा सर इन केस ऑफ डिसमिसल आई प्रेस फॉर विड्रॉल सर। माय हम्बल सबमिशन की सर ऑलरेडी 4 years कंप्लीट होने वाले हैं। आफ्टर इंस्टीट्यूट ऑफ 35 विटनेस ओनली 9 विटनेस हो चुके हैं। डायरेक्ट कोई एलिगेशन PW1 to PW9 ने नहीं लगाया है मुझ पर। श्री आकाश शर्मा लर्नड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट, श्री तरुण पगारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द रिस्पोंडेंट स्टेट, श्री हर्षित शर्मा Sir, I press for withdrawal with liberty to renew the prayer after some time, Your Lordship. आफ्टर सम टाइम क्या? आफ्टर भी डॉक्टर का होगा ना मेडिकल। सर एक डॉक्टर तो इसमें हो चुके हैं जिन्होंने सांप की जब्ती करना बताया था। नहीं, जिसने PM किया। ये PM वाले का PM देखिए का डॉक्टर कौन है?
PM का डॉक्टर लिखिए after arguing for some time, learned counsel for the applicant prays for withdrawal of the application with liberty to revive after the statement of the doctor who had conducted postmortem. of disease. सर टाइम में भी ऑल्सो मेंशन बिकॉज सर ऑलरेडी 9 मंथ हो चुके हैं, 9 विटनेस ही हो चुके हैं Please सर. observe that the trial court shall make all endeavor to expedite the trial and the counsel for the accused persons will cooperate with the trial. सर मैं समझ कि 3 मंथ्स या 5 मंथ्स के अगर इस मीनवाइल अगर वो विटनेस एग्जामिन नहीं हो पाता है ठीक है, अगर नहीं होता तो देखिएगा. सर वो मैं एक्चुअली मेंशन हो जाता तो सर वो मेरे को थोड़ी सी हाँ. सर 6 महीने की लिबर्टी ग्रांट कर दे सर. अभी 6 महीने तो आप कॉपरेट तो करिए, अगर नहीं सर मेरे सर पूरी इसलिए चार्जशीट जो है मैंने जो प्रोसीडिंग्स की कॉपी है मैं इसलिए मैं लेकर आया साथ में सर. लिबर्टी है, आप रिवाइव कर दीजिएगा. तो मैं कौन खाली बिकॉज सर एक्चुअली सर पॉइंट ये है कि वो ऑलरेडी 4 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं सर उसके. अगर इन एनी केस इंटेंशन इज कम्प्लीटली मिसिंग सर. ऑन दैट अकाउंट 304 का ही सर अट्रैक्ट होता है. 4 इयर्स ऑलरेडी होने वाले हैं सर उसको. शर्मा रिवाइव करिए. यस सर अगर मैं पीरियड मेंशन हो जाता तो सर प्रेयर थी सर ओनली सर. मिस्टर शर्मा, पीरियड इतनी जल्दी अभी उसमें आया है कि आप लोग सब ट्रायल क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए समय ले रहे हैं लंबा लंबा. सर पूरे सर वो चालान में सर मैंने जो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करे एक भी नोट ऐसा कोर्ट ने नहीं फाइंड मेंशन किया है. इसीलिए मैंने ऑब्जर्व किया कि आप लोग भी कोऑपरेट करेंगे विद द ट्रायल. सर अगर नहीं होता है तो रिवाइव करिएगा. सर वो दैट्स व्हाई सर आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर पीरियड सर. I have not dismissed on merit. Yes.